Hello and welcome again to you all in your history class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a conclusive part of the Chola Empire in South India. In this session, we will be discussing about the administrative system, the revenue system, the military system, and the social system during the Chola Empire in South India. Here we start. If you talk about the administrative system during the Chola Empire, the king is a person who was the head of the administration. जो किंग था, जो राजा होता था, जो रूलर होता था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पूरा हेड होता था. यानी ऑल द मैटर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज टू बी फॉलोड आउट बाय द किंग इटसेल्फ. Actually, the role of king was very eminent during that one. So, the system of administration is the monarchical system, यानी राजतंत्रात्मक सिस्टम था. ठीक है, यानी प्रजातंत्रात्मक नहीं था, राजतंत्रात्मक था, monarchical system था. So basically king was the head of the administrative system and he got the title, the three titles were got by the kings or the rulers, Chakravarti, Samrata and Triloka. These are the titles have to be taken by the king during their rule. Now the monarchical basis of administrative system was followed at that time and they coronate them, यानी कि उनका जो राज्याभिषेक होता था वो कहाँ होता था, वो तंजौर में या गंगईकोंडा और या चिदम्बरम में होता था. वो अपना राज्याभिषेक करवाते थे. Then the deity of the rulers. तो आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर्स, जब रूलर्स मर जाते थे तो उनके सम्मान में उनकी जो डाइटिस, उनकी जो मूर्तियां थी वो टेम्पल्स में कंस्ट्रक्ट करवाई जाती थी, बनवाई जाती थी और साथ ही साथ में उनके मरने के बाद उनकी पूजा भी की जाती थी. Now if you talk about the administration during the Chola Empire, basically the administration is divided into the officers, in the hands of the officers of two types, the two posts, the high post and low post. तो जो ऑफिसर्स थे, दो तरीके के ऑफिसर्स के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका डिवाइड था. तो जो हाई पोस्ट के जो ऑफिसर्स होते थे उनको हम बोलते थे पेरुदंडनम एंड द लो पोस्ट जो थे उनको हम बोलते थे शिरुदनम. So these are the posts of the officers who control over the administrative systems during the period of Chola Empire. And basically the administration is divided in the plot of 6 parts. So 6 पार्ट में हमने पूरे के पूरे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को डिवाइड किया गया था उस समय. द फर्स्ट वन इज द स्टेट. ओके, तो स्टेट ये पहला सिस्टम था विच वाज डायरेक्टली गवर्न बाय द किंग इटसेल्फ एंड देयर आफ्टर विद इन द स्टेट द मंडलम इज देयर. और मंडल को की देखभाल जो करता था वो उसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था. मोस्टली वहां पे प्रिंस हुआ करता था. Then the mandalam is further divided into the Kottam and Valnadu. तो कोट्टम और वलनाडु में इन मंडलों को डिवाइड किया गया and this Valnadu is divided into the Nadu and Nadu is divided into the Kurram. तो ये एक हेरार्चिकल आपका डेवलपमेंट था, डिवाइड था, डिवीजन था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चोला एम्पायर. तो ये जो नाडु था, इस नाडु को जो कंट्रोल करती थी वो सभा होती थी एंड बेसिकली उस सभा के जो मेंबर्स होते थे उनको हम बोलते थे नट्टार. द मेंबर्स ऑफ द सभा हु गवर्न द लोकल गवर्नमेंट known as the nattar and the members, what was the duty of the members to manage the land revenue and the revenue collections. तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने और उसको मैनेज करने का काम ये मेंबर्स किया करते थे और उन मेंबर्स वो मेंबर्स सभा के होते थे और उस मेंबर्स को बोला जाता था नट्टार. Then the trading provinces was also there which was governed by the sabhas known as nagaram. तो एक और सभा होती थी, एक अलग सभा जो कि मर्चेंट्स के सोसाइटी को और मर्चेंट्स की जो प्रोविंसेस थी उसकी देखभाल करती थी, उसको मैनेज करती थी और उन सभाओं को हम बोलते थे नगरम. And the smallest unit of administrative system was grama, that was the village government. And the Uttar Meru record which was found in the South India which gives the record to us where the record of the village government was found in this record. तो ये एक रिकॉर्ड मिला है जहां से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि विलेज गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती थी. Now let's move towards the village government. Basically the village government is governed by the 3 committees. The first committee is Ur which having the member
who was the adult male committee। तो ये कैसी उर जो है एक adult male committee यानी कि adult males की एक कमिटी का ग्रुप था। एंड द सेकेंड इज द सभा और महासभा। तो बेसिकली सभा और महासभा के जो मेंबर्स थे वो उसके जो कमिटी के मेंबर्स थे वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है। और उन ब्राह्मण्स को हम अग्रहारा भी कहते थे या पेरुमक्कल या पुरुंगुरी, इन दोनों के नाम से जाना जाता था। तो बेसिकली ब्राह्मण्स को हम अग्रहारा कहते थे और इस कमिटी को हम बोलते थे पेरुमक्कल और पुरुंगुरी। सो सभा और महासभा ये थे। तो सभा के जो मेंबर्स थे, ठीक है, सभा के जो मेंबर्स थे उनको हम वरियम कहते थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे उनको पेरुमक्कल और पुरुंगुरी की कमिटी का नाम था, लेकिन ये जो सभा के मेंबर्स थे स्पेशली उनको हम वरियम कहते थे, ठीक है। और ये वरियम की इस कमिटी में 30 मेंबर्स होते थे और उनका जो टेन्योर था वो 3 इयर्स का था। एंड द थर्ड कमिटी वाज द नगरम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कमिटी ऑफ मेंबर्स, इट वाज द कमिटी ऑफ मर्चेंट्स। Then look forward, what was the election procedure for the members of वरियम। तो जो वरियम थे उनका चुनाव कैसा होता था, जो मेंबर्स ये जितने सारे थे, चाहे नगरम कमेटी हो, चाहे सभा या महासभा हो या उर के मेंबर्स की इलेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली द इलेक्शन procedures were there and having some eligibility criteria. The persons or members having age between 35 to 70 years will take the participation in the election. Then they have 1.5 acres of land by their own, उनकी खुद की इतनी जमीन होनी चाहिए। and they have a Vedic knowledge, the knowledge of Vedas were included, at least एक वेद का तो ज्ञान उनको होना ही चाहिए था। एंड दे हैविंग अ काइंड पर्सनालिटी, वो बहुत ही काइंड पर्सन हो ह्यूमन काइंड के लिए। एंड लो इट इज नोटिसेबल दैट हैविंग, उनको क्या करना था कि पिछले 3 सालों से वो किसी भी कमेटी के मेंबर्स इलेक्ट ना हुए हों। ये बहुत ही अच्छा ढांचा था क्योंकि हर किसी को इससे मौका मिल जाया करता था। एक हायरार्चिकल ऐसा नहीं होता था कि जो 3 साल से 4 साल से 10 साल से मेंबर है उस कमेटी का वो वही मेंबर बनता चला आ रहा है। तो बेसिकली इसमें ये एलिजिबिलिटी थी कि कोई भी इसका मेंबर बन सकता था। नाउ व्हाट वाज द, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पूरा विलेज था उसको इलेक्शन के लिए 30 यार्ड्स में डिवाइड किया जाता था। नाउ व्हाट वाज द वर्क ऑफ ग्राम सभा। ये जो सभा की मैं बात कर रहा हूँ इस सभा का, बेसिकली ये जो ग्राम सभा है ये आपका विलेज या लोकल गवर्नमेंट है। तो उसके लिए इसके वर्क क्या क्या करते थे, सबसे पहली बात तो क्या है कि दिस ग्राम सभा और अ सभा विल टैक्स लेवी करती थी, ठीक है। इट लेविड द टैक्स ऑन द पब्लिक लैंड्स और द कैसे, जैसे कि इसने कर दिया कुछ जगहों पर जहां पे मान लीजिए मेला या अनुष्ठान होता था वहां पे इसने टैक्स लगाना शुरू किया। सोशल लैंड्स पर इस सभा ने टैक्स लगाया और ये सारा का सारा जो टैक्स था वो गांव के हित के लिए, उस विलेज के फेवर के लिए, वेलफेयर के लिए अच्छा था। वो डेवलपमेंट करवाते थे, कैनाल्स का, इरिगेशन सिस्टम का, डैम्स ऑन द कावेरी आपने सुना होगा। खैर इसके वर्क की अगर बात करते हैं, बेसिकली इट कलेक्ट्स द टैक्स एंड डिपॉजिट द टैक्स इन द रॉयल पैलेसेस, ठीक है। तो वो ट्रेजरी जो होती थी किंग की उसमें उस टैक्सेस को डायरेक्टली आपको क्या करता है, डिपॉजिट करता था। देन इट सेटलमेंट, इट गिव्स द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये जो डिस्प्यूट्स होते थे, ये जो थोड़े बहुत गांव में आप देखते होंगे या कहीं भी देखते होंगे छोटे मोटे विवाद होते थे तो उसके बीच में ये समझौता करवाता था, उसको सेटल करवाता था। and the construction and maintenance of temples was there। और ये जो टैक्सेस का कलेक्शन था उससे ये कंस्ट्रक्शन करता था और मेंटेन करता था टेम्पल्स को, कैनाल्स को, रिवर बेस सिस्टम को। एंड हेल्प पीपल्स इन द टाइम ऑफ फेमाइन एंड ड्रॉप, सूखे हुए अकाल के समय में ये लोगों के उस टैक्सेशन से मदद भी करता था। साथ में इट बेसिकली प्रमोट एजुकेशन एज वेल एंड आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्वेडर्स। जो इन्वेडर्स होते थे उनके खिलाफ लोगों को प्रोटेक्ट करता था और साथ ही साथ में जिन्होंने वीरता का परिचय दिया हो उनको ये राजा से उपहार भी दिलवाया करती थी ये सभा। If we look to the revenue system under Chola Empire, the land revenue system or a collection was the main source of the collection by the taxes. Okay, so the chief source of state income was the land revenue, which was the 1/3 of the total produce, and it was collected in the cash। तो उसको कैश में कलेक्ट किया जाता था
But the important thing was that the whole land is divided into the 12 types of part. तो 12 पार्ट में लैंड को डिवाइड किया गया था, which was based on the production by the lands. उसके आधार पर ये आपका जो अमाउंट था, ये जो आपका रेशियो था लैंड कलेक्शन का, वो फिक्स रखा गया था. बट ओवरऑल एवरेज में 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, हालांकि बहुत ज्यादा था 1/3. एंड द वैली वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. वैली जो है, ये जो वैली है, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड की यूनिट को वहां पर स्टैब्लिश किया गया. एंड उसके बाद देखें, except the land revenue, there was other taxes as well. That was the marriage tax, trade tax, customs and toll tax was introduced there. And अगर इसके बाद बात करते हैं तो some group of peoples or a land of peoples were free of taxes. तो टैक्स फ्री कुछ लैंड भी थी, कुछ लोग थे, जैसे आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट पर्संस हो गए, और क्रेमेशन ग्राउंड यानी जो शमशान घाट था वो हो गया, टेम्पल्स का एरिया हो गया, या लेक का एरिया हो गया. ये सारे के सारे जो रीजन्स थे ये टैक्स फ्री थे, इनके ऊपर टैक्स इम्पोज्ड नहीं किया गया था. Then the coin was introduced, that was the gold coin and known as काशू. तो गोल्ड कॉइन को आपको इंट्रोड्यूस किया गया और उसको नाम दिया गया काशू. एंड the whole the tax collection was, ये जितना भी टैक्स कलेक्शन था इसको किस चीजों में लगाया जाता था? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, डैम जो कावेरी नदी पर बनाया इन्होंने, और उसके बाद इरिगेशन पर्पसेस के लिए आपके कैनाल्स बिल्ड करवाए गए. यू नो इन साउथ इंडिया द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चोला रूलर्स. ठीक है. देन टेम्पल्स का भी निर्माण कराया इन्होंने. नाउ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, The head of the whole military system was the king itself. पूरे के पूरे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड था वो किंग था. But huge administration as well as the military system was there under the Cholas. So इसीलिए मिलिट्री का जो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन था, इसीलिए इन्होंने अंडमान निकोबार यानी 12,000 अप टू 12,000 जो आइलैंड्स थे उनको कंकर कर लिया था. आपने देखा म्यांमार, मालाबार, लक्षद्वीप और उसके बाद श्रीलंका, ये सारे के सारे आइलैंड्स को इन्होंने कंक्वर किया बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल एज द मिलिट्री पावर्स. सो बेसिकली द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और द आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू द इन्फेंट्री, जिनको हम पैदल सेना कहते हैं, और इन्फेंट्री को बोला जाता था कुडी वेच्चई वेगार. कुडी वेच्चई वेगार जो कि इन्फेंट्री थी. उसके बाद कैवलरी जो थी इनकी वो बदी पई वेगार यानी घुड़सवारी वाली सेना. आर्चरी यानी धनुषबाण धनुर्धर, उनको विल्लीगल बोला गया. और एलिफेंट आर्मी को कुजिर मल्लार के नाम से जाना जाता था. और आपको पता होगा कि दे कंस्ट्रक्टेड द नेवी एज वेल, इनकी अपनी नेवी भी थी, तभी तो इन्होंने आइलैंड्स पर पूरा कंट्रोल किया. पूरे के पूरे आइलैंड्स पर अप टू 12,000 आइलैंड्स पे कवर करने का एक यही कारण था कि इनकी जो नेवी थी वो बहुत ही अच्छी थी. Then the head of the whole military administration was the king itself, but the commander of the troops जो थे उनको नायका बोला जाता था, और जो आर्मी चीफ हुआ करते थे उनको महादंड नायका और सेनापति के नाम से जाना जाता था. And they got their salary by cash. So due to such military and powerful administrative policies were governed, they conquered the almost the southern region of the Southeast Asia. Now if you talk about the social system during the Chola Empire, basically the society was divided into the two parts or the two groups. तो ब्राह्मणास एंड नॉन ब्राह्मणास. तो ब्राह्मणास और नॉन ब्राह्मणास में ही पूरा वर्ग डिवाइडेड था. देयर वर नो कास्ट सिस्टम जस्ट लाइक टुडे क्षत्रिय एंड वैश्यास. तो उस समय केवल ब्राह्मणास और नॉन ब्राह्मणास में पूरी की पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी. अंडर नॉन ब्राह्मणास जिनको हम शूद्रास में कहते थे उनको शूद्रास कहा जाता था. और उन शूद्रास में जो वेल्लाल होते थे उनको शूद्र पीजेंट्स होते थे. बेसिकली वो किसान होते थे और शूद्र से बिलोंग करते थे, उनको वेल्लाल कहा जाता था. और ब्राह्मणास को तो आपको पता ही है. एंड वो जो चोला एम्पायर था और बाय ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट इसको डिवाइड किया गया साउदर्न पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में. तो साउदर्न पार्ट के जो लोग थे उनको हम वेलंगाई कहते थे. वेलंगाई में बेसिकली दो टाइप्स के पीपल्स आते थे. पहला पीजेंट किसान लोग और दूसरा वर्कर्स जो मजदूर होते थे. एंड लेफ्ट पार्ट में उनको कहा जाता था इदंगई. इदंगई में आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्संस होते थे. तो बेसिकली ये जो ग्रुप है ये थोड़ा सा मोस्ट प्रॉस्पेरस था एज कंपेयर टू द वेलंगाईज. Then no system of the caste like Kshatriya and Vaishyas were there.
देन कंडीशन ऑफ द वुमेन्स एट दैट टाइम वाज वेरी प्रॉस्पेरस, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस कंडीशन उस समय महिलाओं की थी। उनको बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, जैसे उनके पास धन बहुत होता था, वेल्थ बहुत होती थी, और वो अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को बेच या खरीद सकती थी, उसकी पूरी उनको आजादी थी। एंड देयर वाज द लेस वैदिक एक्टिविटीज वाज देयर, वहां पर वैदिक एक्टिविटीज उस समय में बहुत ज्यादा तो देखने को नहीं मिली है। If we see the cultural progress during the Chola Empire, so the culture was seen in the construction of the temples like Brihadeshwara at the reign of Raj Raja first. तो टेम्पल्स की अगर बात करते हैं, बेसिकली द आर्किटेक्चरल स्टाइल वाज द्रविडियन। तो द्रविडियन स्टाइल का एक बहुत ही बड़ा युग और एरा आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो उसमें टेम्पल्स के बारे में मैंने प्रीवियस जो वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बता रखा था, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं इसमें थोड़े से ओवरव्यू दे देता हूं आपको। तो बेसिकली द टेम्पल्स वाज बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चरल स्टाइल द द्रविडियन एंड बेसिकली इन विच द स्क्वायरल डायमेंशंस वर देयर, यानी टेम्पल को जो बिल्ड किया जाता है तो लगभग वर्गाकार यानी स्क्वायर के फॉर्म में होते थे यार्ड्स उसके। The high vimanas constructions were there and the high mandapas and the gopuram towers having big halls from the both the sides all around the deities or the main sculpture, and there was a big sculptures with the pillared sculptures भी मिलता है। और इसीलिए इसको बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े आकार का टेम्पल हुआ करता था। द हाई टावर्स आर देयर। सब पूरे साउथ इंडिया में सबसे ऊंचा आपका जो टेम्पल है वो बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कहां पर है, तंजौर में, जिसको आज हम तंजौर के नाम से जानते हैं। तो अगर कहें तो फॉर द कल्चरल की अगर बात करते हैं तो टेम्पल की जो स्टाइल थी और आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो द एरा, उस पूरे के पूरे एरा में सबसे हाईएस्ट पीक पे था कल्चर की बात करें तो। देन दे वर मच फोकस ऑन द मेटल लाइक ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेटल को यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया गया। इसके पहले जो था वो स्टोन्स का यूज किया जाता था, ठीक है, स्टोन्स का यूज किया जाता था मंदिरों को बनाने के लिए और मूर्तियों को बनाने के लिए। बट दे वर मच फोकस्ड कि ब्रॉन्ज से मूर्तियां बनाई गई, और उसका एक एग्जांपल हमारे सामने है। ड्यूरिंग द चोला पीरियड नटराज की मूर्ति बनाई गई, वो भी किससे, ब्रॉन्ज मेटल से। देन नटराज का बनाया जाना इस बात को साबित करता है विच गिव्स द प्रूफ दैट दे आर द बिलीवर ऑफ शैव, यानी शैव आइडियोलॉजी यानी शिव को मानने वाले में ये थे, इसलिए इन्होंने नटराज की मूर्ति जो कि ब्रॉन्ज मेटल की थी उससे बनवाई। सो इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो एक नाम आता है नंबी अंदार नाम्बी, जिन्होंने रिलीजियस सॉन्ग्स को कंपोज किया। जिन्होंने क्या किया, रिलीजियस सॉन्ग्स को कंपोज किया ड्यूरिंग द राज राजा एंड राजेंद्र फर्स्ट। जब राज राजा और राजेंद्र के टाइम पे ये वहां पे पोएट थे, किनके, पैलेस पोएट थे। एंड अब बात करें तो उन्होंने अपने रॉयल प्रीस्ट के तौर पर शैव आइडियोलॉजी वाले लोगों को रखा हुआ था, यानी जो ऐसे प्रीस्ट जो शैव यानी शिव को मानने वाले थे उनको एज अ पोएट और उसके बाद कोर्ट प्रीस्ट एज अ अपॉइंट किया गया। तो उनके पैलेस पोएट में जयगोंदर एक नाम है, जिन्होंने कली गट्टा पुरानी नाम की एक कविता लिखी, ठीक है, उन्होंने कंपोज की। साथ साथ में किसके रेन में थे वो, कुलोटुंगा, ठीक है, कुलोटुंगा के रेन में इन्होंने कलिगट्टा पुरानी जयगोंदर ने लिखी। एंड कंबन जो कि एक तमिल रामायण है, यानी जो तुलसीदास की रामायण है उसको तमिल लैंग्वेज में लिखने वाले, उनका नाम है कंबन, उसको हम रामावतारा के नाम से जानते हैं, जो इनका लिटरेरी वर्क था। देन इन्होंने स्टोन्स के जगह पर इन्होंने ब्रिक्स की जगह पर स्टोन्स का यूज किया मंदिरों के निर्माण के लिए, यही द्रविडियन स्टाइल थी। और उसके दो एग्जांपल जिसमें इन्होंने स्टोन्स का यूज किया, पहला तो बृहदेश्वर है ही है, साथ में कांचीपुरम का टेम्पल और उसके बाद ममल्लापुरम का टेम्पल इसमें आता है। तो इफ वी सी दैट द होल चोला डायनेस्टी और द एम्पायर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अगर बात करें, साथ साथ में मिलिट्री सिस्टम की बात करें, और रेवेन्यू कलेक्शन या टैक्सेस की बात कर ले, या तो फिर कल्चरल की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो इट वाज द एमिनेंट, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा बड़ा और प्रॉस्पेरस कल्चर भी था इनका। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड मच मोर अबाउट द चोला एम्पायर. So basically I have provided the 3 lectures with the video through the videos, the part 1, part 2 and that one the conclusive part. Go through all the videos and clear your doubts. I think you can all understand easily. So I will be coming back with a new topic
Till then, take care and bye bye.